Hello everyone, I am Dr. KG Arora. From today onwards, we are going to start macroeconomics. The first chapter we are taking national income, but before that, we shall understand the meaning of macroeconomics. Macro is a Greek word, it means large. Macroeconomics analyzes the behavior of the entire economy. In microeconomics, we have already studied the individual economic units. For example, if we are studying the individual demand, that means demand of an individual consumer, this is a part of microeconomics. But when we are studying the aggregate demand, that is the demand of the entire economy, this is a macroeconomics. It means aggregate demand, aggregate supply, national income, these are the part of macroeconomics. It means it studies the aggregates. Now we are moving to the first topic of national income, that is basic concepts of national income. First is consumption goods. Before that, we have to understand the meaning of consumption. Consumption is the act of using goods and services to satisfy our wants. We are consuming various type of goods and services to satisfy our wants, and that are classified in four category. So first, consumption refers to activity leading to satisfaction of wants. All goods and services acquired with intention of satisfying wants are classified as consumption goods. And this consumption goods we can classify in the following category. The first one is durable consumer goods. Those goods which can be used over a considerable period of time. For example, in your house, washing machine, motor car. This you can use over a considerable period of time again and again. These are durable consumer goods. And second one is non-durable consumer goods. These are used only once. Medicine, fruits, vegetables. These are non-durable consumer goods. And last one is services like banking, medical care, communication. It is used when it is used by the consumer household. This is regarded as services for consumption. In between durable and non-durable goods, we have semi-durable goods also, and their age is approximately 1 year. For example, in your house, we are using crockery, tires. These are semi-durable goods. And no doubt, the purchase of these consumption goods depends on income. It means income of the household will determine the quantity of these consumption goods. Now we are moving to the capital goods. Those goods which can be used to produce other goods. Those goods which are capable to produce other goods are capital goods. For example, we are using machines, raw material. बोथ आर कैपिटल गुड्स. क्यों? क्योंकि ये मशीन भी हमें दूसरी गुड्स को बनाने के काम आती है, और जो रॉ मटेरियल है वो भी दूसरी गुड्स को बनाने के काम आता है. इट मीन्स बोथ आर एक कैपिटल गुड. सो ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स में हम क्या क्या ले सकते हैं? फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स. एंड सेकेंड इज नॉन ड्यूरेबल, जिसमें हम रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं. जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जो कैपिटल गुड्स हैं, वो उनका डेप्रिसिएशन भी होता है, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे. अब हम कोई भी एक पर्टिकुलर गुड कंजप्शन गुड्स भी हो सकती है और कैपिटल गुड भी. ये कैसे डिसाइड होगा कि वही एक सेम गुड मे बी ए कंजप्शन गुड, मे बी ए कैपिटल गुड? इट विल बी डिटरमाइंड बाय इट्स यूज, कि कौन यूज कर रहा है, किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, उससे वहां से उसको क्लासिफाइड किया जाएगा, जिसको हम एंड यूज क्लासिफिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं.
refrigerator, if it is used by household for their consumption purpose, this is a consumption goods. When the same refrigerator is purchased by confectionery owner for इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो उसको कोल्ड ड्रिंक के लिए काम में लाता है, आइसक्रीम उसमें रखता है, एंड दे जनरेट द इनकम, दैट विल बी रिगार्डेड एज ए कैपिटल गुड्स. तो सेम गुड मे बी ए कंजप्शन गुड, मे बी ए कैपिटल गुड, डिटरमाइंड बाय इट्स यूज. एक एग्जाम्पल और लेते हैं कार का. कार इज यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, परचेज बाय हाउसहोल्ड फॉर कंजप्शन पर्पस, तो ये कंजप्शन गुड हो गई, कंज्यूमर गुड हो गई. इफ द सेम कार इज परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर, तो उसके लिए ये एक कैपिटल गुड होती है, बिकॉज दैट सेम कार विल बी यूटिलाइज्ड बाय टैक्सी ड्राइवर टू जनरेट द इनकम. सो फॉर टैक्सी ड्राइवर इट इज ए कैपिटल गुड. अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर. वो है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक रेफर्स टू एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आपकी पॉकेट में इस समय कितने पैसे हैं, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि ये एकदम से आप बता सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह से आपके बैंक में कितने पैसे हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी यू हैव डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, दैट इज आल्सो ए स्टॉक कंसेप्ट, बिकॉज दैट कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अब इसी तरह से वाटर इन ए टैंक, ये हम एक पॉइंट पर मेजरमेंट कर सकते हैं. पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजरमेंट हो सकता है. तो इसका मतलब इसमें एक टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम साइज नहीं होता, जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर कोई भी क्वांटिटी मेजरमेंट हो सकती है, जिसमें हमें साइज की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पर मंथ, पर ईयर, पर आवर, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती. एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट होता है. अब हम आते हैं फ्लो कंसेप्ट पर. बिल्कुल इसका जस्ट रिवर्स है. Any quantity which can be measured during a period of time. For example, if my question is, what is your father income? You will not say that my father income at 10 AM is this much. आपका आंसर होगा कि my father income is 50,000 per month. It means you have taken 1 month time to measure your father income. दिस इज ए फ्लो कंसेप्ट. सो जहां पर आप एक टाइम साइज लेते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, उसको हम फ्लो कंसेप्ट कहते हैं. तो अब देखिए, इनकम ऑफ ए पर्सन, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम टैंक इज ए फ्लो कंसेप्ट, बट वाटर इन ए टैंक विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसको हम कहते हैं स्टॉक. तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जब हम स्टॉक में कोई चेंज करते हैं जिसके लिए हमें टाइम साइज की जरूरत पड़ती है, तो वो जब भी चेंज होता है तो देन इट विल बी ए कंसेप्ट ऑफ फ्लो. सो चेंज इन स्टॉक इज ए फ्लो कंसेप्ट. तो चेंज इन स्टॉक इज ए फ्लो कंसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश में इतनी मशीन 100 मशीन्स हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये है स्टॉक. तो अगर हमने एक पीरियड पे इसमें हमने कुछ मशीन्स ऐड कर दी, यानी कि इस स्टॉक में चेंज हो गया, तो अब हमारा क्वेश्चन ये भी होगा कि कितने टाइम पर वो स्टॉक में चेंज आया, 1 मंथ में या 1 ईयर में या 6 मंथ में या 1 डे में. तो इसका मतलब हमने यहां पर अब टाइम साइज ले लिया. तो टाइम साइज या टाइम डायमेंशन लेते ही जो ये चेंज आया, इसको हम कहते हैं फ्लो कंसेप्ट. सो चेंज इन स्टॉक इज ए फ्लो कंसेप्ट. सो एनी काइंड ऑफ चेंज रिक्वायर्स ए टाइम साइज एंड दैट बिकम्स ए फ्लो कंसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन ए टैंक is a stock concept, but water flowing into the tank, it's a flow concept.
अगर हमारे पास मशीन कितनी है, दिस इज ए स्टॉक कंसेप्ट. बट हाउ मच machines we have added, that is capital formation or investment, that becomes a flow concept. आपके पास कितनी वेल्थ है, ये स्टॉक कंसेप्ट है. और आप करंट में इनकम कितनी कमा रहे हैं, तो उसके लिए एक टाइम साइज चाहिए, तो वो इनकम, तो वो फ्लो कंसेप्ट बन जाता है. सिमिलरली एनी एग्जांपल्स यू कैन distinguish between stock and flow by taking the base, that is whether it is measurable at a particular point of time or it can be measured during a period of time.